Hello everyone. So in this semester for fourth sem we'll be completing the book Statistical Mechanics. Now this is the syllabus of Statistical Mechanics. It basically comprises of 3 units, unit 1, 2 and 3. So we'll proceed one by one. First we'll start with unit 1, then unit 2 and then unit 3. Now today we'll start with the very first topic in unit 1. Here we'll talk about some basic ideas of statistical physics. The book that we are referring for this particular subject, statistical physics, the book is Archand. Now, what is statistical physics? First, we'll start with the introduction. Let me zoom the screen. Now, till 17th century, laws of mechanics were well understood and used to explain some physical properties of matter in bulk, that is macroscopic properties such as pressure, volume and temperature, etc. But these laws could not be applied in cases when the system contained a large number of particles, either because of some inherent mathematical complications और because of insufficient observed information. ना इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये समझेंगे that why do we need statistical physics. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो नीड है वो क्यों अराइज हुई, वो अराइज क्यों हुई, क्योंकि पहले क्या था, when we were using the basic laws of mechanics, हम easily जो है explain कर पाते थे सिस्टम की physical properties को, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम वहां आई जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आया which contained a large number of particles. तो ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें हमारे number of particles बहुत ज्यादा हैं, उस सिस्टम को हम सिंपल लॉज ऑफ मैकेनिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते. उन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. क्यों नहीं कर सकते? सिंस वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो वी हैव सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा हर एक पार्टिकल का एक दूसरे के साथ, उतने ही ज्यादा मोशन होगा. तो हमें हर एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है दे आर लार्ज इन नंबर. तो इस वजह से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है सिस्टम के अंदर. तो इस वजह से जो सिस्टम है उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो सफिशिएंट नहीं होती. और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम करते हैं, सिंस वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो वी हैव very cumbersome kind of mathematical complications which are very difficult to be solved. So the complete information about the motion of a mechanical system consisting of large number of particles could be obtained by solving equations of motion which are equal to the number of degrees of freedom of the system with the help of the knowledge of initial position and momentum of all the particles, and also the information about the nature of interaction between these particles. ये क्या कहता है कि अगर हमें इस सिस्टम को स्टडी करना है, इस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस सिस्टम में हमें पता है वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का अपना एक मोशन है, सो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा है सॉल्व करने के लिए, और उसके साथ साथ सिर्फ पार्टिकल का मोशन ही नहीं है, पार्टिकल का इंटरैक्शन भी है एक दूसरे के साथ. तो इन सबको स्टडी करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज इवन इम्पॉसिबल विद द प्रेजेंट डे फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? When we have a large number of particles in a system, we cannot solve the equations of motion for such a large degrees of freedom. तो इस situation में हम क्या करें? So it is therefore impossible to apply the laws of mechanics or principle of dynamics to solve the problem of a microscopic chunk of matter consisting of large number of constituent particles like molecules, atoms, electrons, etc. तो ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स.
ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है इन विच वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारी जो ये बुक है पूरी इंटायर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें हम सिर्फ उन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे विच आर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके अलावा हम कोई और सिस्टम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स अप्लाई ही उन सिस्टम्स के लिए होती है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें we'll talk about the average, we'll talk about the average motion of the particle। हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी करने की बजाय we'll study the average property of the system since the number of particles are very large। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, as the number of particles are very large, therefore the methods give some inferences regarding the average property of the system। So for calculating these averages, we have to solve a large number of equations of motions for all the particles with the help of initial conditions which are not known। इस वजह से क्या होगा, हम exact average जो है वो भी calculate नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी ज्यादा है, हर एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करना, उसको सॉल्व करना, फिर एवरेज आउट करना, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, तो हाउ टू फाइंड द एवरेज, एवरेज मोशन जो है वो हम कैसे निकालें, टू स्टडी द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स the averages are obtained without knowing the details of the individual particles of the system। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, यूजिंग दिस स्टैटिस्टिक्स हम जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं without knowing the details of the individual particles of the system। पार्टिकल की इंडिविजुअल डिटेल्स हमें चाहिए ही नहीं, और उसके बिना ही हम एवरेज निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन को जरूर याद रखना, the larger the number of constituent particles in a physical system, the more accurate is the statistical information। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ही एक्यूरेटली जो है हम उस सिस्टम को स्टडी कर पाएंगे। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है विच हैव स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करना जो है कंप्लीटली मीनिंगलेस है। ये मेथड अप्लाई वहीं पे होगा जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ज्यादा एक्यूरेटली जो है हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ द एप्लीकेशन ऑफ अबव स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स टू फिजिक्स has given rise to a new branch of physics which is called the statistical physics। So what is statistical physics? It is a branch of physics which deals with the study of physical behavior of a system composed of a very large number of particles। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में तुम लोगों को क्या करना है, तुमको सिर्फ इतना करना है, लाइक व्हाई डू वी नीड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये जो नई न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आई है, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स का आने की जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत क्यों थी, इसकी जरूरत थी उन सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए विच कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ही एक्यूरेटली हम उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं यूजिंग दी स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम इस स्टैटिस्टिकल मेथड को फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, तो इट गिव्स राइज टू न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो दिस ब्रांच बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ physical behavior of a system composed of a very large number of particles। ये हम आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना जानो, अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज करते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतनी इजिली, उतनी ही एक्यूरेटली हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगी। ना अब इसमें जो है, ये भी हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे।
स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। अभी मैं जस्ट बस इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ब्रीफ, उसके बाद हमें ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। द 3 स्टैटिस्टिक्स, कौन कौन सी 3 स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं? एक है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज द प्योरली क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। दैट मीन्स यहाँ पर हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास 2 और स्टैटिस्टिक्स आती हैं। वन इज द बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड द थर्ड वन इज द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास इन टोटल वी हैव 3 types of statistical methods. One is the Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics and the Fermi-Dirac statistics. इन तीनों स्टैटिस्टिक्स को हमें ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ना है, हमें इस पूरी बुक में करना ही यही है। एक यूनिट में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ेंगे, एक यूनिट में हम बोस-आइंस्टीन पढ़ेंगे, एक यूनिट में हम फर्मी-डिराक पढ़ेंगे। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, इसका मतलब उसमें हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उन सिस्टम्स में अप्लाई होती है जहां पर हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जो हैं, दीज आर प्योरली क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसमें हम उन सिस्टम्स में इन स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे जो हमारे क्वांटम सिस्टम्स हैं। लाइक अगर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए वी यूज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी हम बोस-आइंस्टीन यूज करें उस सिस्टम में या फर्मी-डिराक यूज करें। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स या विच आर कंसिस्टिंग ऑफ बोसॉन्स, ऐसे सिस्टम्स जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बोसॉन्स हैं, वहां पर हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। और ऐसा सिस्टम जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे वो फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए वी अप्लाई फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। बोसॉन्स, फर्मियॉन्स, आई होप तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी व्हाट आर बोसॉन्स एंड व्हाट आर फर्मियॉन्स। बोसॉन्स हमारे वो पार्टिकल्स होते हैं विच हैव इंटीग्रल स्पिन, फर्मियॉन्स हमारे वो पार्टिकल्स होते हैं विच हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस हाफ स्पिन है, माइनस हाफ स्पिन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उन सब में हम फर्मी-डिराक लगाएंगे। अगर इंटीग्रल स्पिन है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इंटीग्रल स्पिन है जैसे 0, 1, 2, 3, वहां पर हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आफ्टर नोइंग द इंट्रोडक्शन, like why do we need statistical physics? We need it to study the system which consisting of a very large number of particles. ठीक है, after knowing this we will now move to the some terminologies that to be used. आगे जाके हम इन टर्म्स को बार बार यूज करेंगे, लाइक सिस्टम, इवेंट, ट्रायल। तो अब ये चीजें पूरा डिफाइन करने की बजाय वी शुड नो सम टर्मिनोलॉजीज। जैसे आगे मैंने वर्ड यूज किया सिस्टम, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने अगर वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट इवेंट, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या कहने जा रही हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजीज जो है तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है जब तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है अपना मैथ्स में इन योर आई थिंक 11th और 12th स्टैंडर्ड। तुमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है इन डिटेल, वहां पे ये टर्म्स तुमने ऑलरेडी यूज किए, तो दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन। एग्जाम में जो है ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म जो है दैट वी शुड नो इज द सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिस्टम? अ सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जो है 2 तरीके के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू पार्टिकल्स। उन सिस्टम्स को हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। लाइक सिस्टम्स विच हैज
like we are saying if we have a system that is about 10 raised to power 3 particles, तो ऐसे systems जो है microscopic system के अंदर आते हैं. So these are the systems which contain only a few particles. Now we have another type of system which is the macroscopic system. Macroscopic system होता है which contains a very large number of particles. जैसे suppose we have 10 raised to power 23 molecules in a system. वहां पर हमारा जो सिस्टम है वो मैक्रोस्कोपिक कहलाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज अ सिस्टम? इट इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें स्टडी करना है, जिसको हमें स्टडी करने का इंटरेस्ट है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम. दो तरीके के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वो है which contains only a few particles. Macroscopic system वो है which contains a large number of particles. Now after knowing the definition of system, we come to trial and events. In terminologies से तुम लोग already familiar हो. जब probability में हम कोई event करते हैं, like अगर suppose हम एक example लेते हैं tossing of a coin, तो coin को toss करना एक ट्रायल है, और उसको टॉस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, लाइक हेड आया या टेल आया, वो हमारा इवेंट होता है. तो अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास दो इवेंट्स पॉसिबल है, ईदर हेड और टेल. So the performance of an experiment for collecting data, that means tossing of a coin, is called a trial, and the outcome or result of the experiment or trial, outcome means head आया या tail आया, that is called event. इसको example से study कर सकते हो यहाँ से. If we consider the tossing of a coin, coin जो है it may fall with head up or with tail up. जब हम coin को toss करेंगे या तो head आएगा या tails आएगा. तो throwing of a coin is a trial. We are performing an experiment. That experiment is the throwing of a coin. Now either we get head or a tail after the performance of an experiment, that becomes an event. So if we throw a coin, there are two events possible. That means या तो heads आएगा या हमारा tails आएगा. ठीक है. तो ये हमारा हो गया example. Next अगर हम कहें we have a well shuffled playing cards, तो हमारे जो 52 कार्ड्स है उनमें से एक कार्ड को ड्रॉन करना हमारा ट्रायल हो गया. और उसको ड्रॉ करने के बाद कोई भी अगर हमारे पास आता है, सपोज हमारे पास हार्ट का 13 आया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा इवेंट. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा ट्रायल है. ठीक है. और कितने पॉसिबल इवेंट्स होंगे हमारे पास? जितने पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे. लेट्स से हमारे पास 52 इन टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? इन टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे कितने होंगे? 52. तो total number of possible events in drawing a card from a well shuffled playing cards will be 52. So this is the definition of a trial and event. The performance of an experiment for collecting data is a trial, and the outcome or result of the experiment is called event. Now next terminology that we'll study now is the equally likely events. Now what are equally likely events? Events जो हैं they are said to be equally likely if none of them occurs in preference to the others. ऐसे events को, events की बात हो रही है, that means the outcome or result of an experiment. वो events जो है equally likely होते हैं जहां पर किसी भी event को हमने कोई preference नहीं दी. मतलब जब हमने coin को toss किया तो उसमें हेड्स और टेल्स आना, दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. हमने किसी को प्रेफरेंस नहीं दी. इफ वी टॉस अ कॉइन एंड ऑब्जर्व द आउटकम और रिजल्ट, टू सिंपल इवेंट्स में अकर. कौन कौन से इवेंट्स हो सकती हैं? द कॉइन में शो
head or may show tail. Both have equal chance of coming up. That means both have the same probability of coming up. अगर हमारे पास total events 2 हैं तो heads आने की probability क्या है 1/2, tail आने की probability क्या है 1/2. So both these events, they are equally likely events in which we have not given any preference to any event. Now the next term is the favorable event. Favorable event क्या होता है? जहां पर हमने कुछ भी रिजल्ट आया जो हमारे ट्रायल का, उसमें हमने एक रिजल्ट को अगर कुछ प्रेफरेंस दे दी किसी और रिजल्ट के कंपैरिजन में, तो वो प्रेफर्ड इवेंट हमारा फेवरेबल इवेंट होगा. ठीक है, द पॉसिबल रिजल्ट of a trial which ensures the occurrence of a particular outcome is called favorable event. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से क्लियर होगा. सपोज वी आर टॉसिंग अ कॉइन. ये हमारा ट्रायल है. इन अ ट्रायल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, सपोज मैंने बोला टेल्स का आना इज फेवरेबल. दो इवेंट्स पॉसिबल है, या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा. मैंने टेल का आना, ये जो पॉसिबल रिजल्ट है टेल का आना, इसको मैंने फेवरेबल इवेंट बना दिया. तो इसका मतलब हेड्स का आना जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं पॉसिबल रिजल्ट्स जो है किसी भी ट्रायल के, उसमें अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को कुछ इंपॉर्टेंस दे दूं, ठीक है, तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया, और जो बाकी के रिजल्ट्स हैं वो अनफेवरेबल हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जो हमने सपोज कोई भी एक ट्रायल किया, उस ट्रायल को करने के बाद जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स हैं, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे if the occurrence of one rules out the simultaneous occurrence of the other. In other words, mutually exclusive events cannot occur simultaneously. इसका मतलब क्या है कि वो events mutually exclusive होते हैं अगर एक का occurrence rules out कर दे दूसरे के occurrence को. Example, suppose I am doing a trial of tossing a coin. मैंने एक कॉइन को टॉस किया. ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, सपोज मेरे पास हेड आया. अब हेड आ गया, इसका मतलब टेल के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट हो गई. तो इसका मतलब ये जो हेड्स एंड टेल्स है, दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आ गया तो पहला नहीं आ सकता. तो द occurrence of one rules out the simultaneous occurrence of the other. ठीक है, इसको यहाँ पे पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ कॉइन, देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हेड अप एंड टेल अप. व्हाई दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? बिकॉज only one of them can occur as a result of the ट्रायल. क्योंकि जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो सिर्फ एक ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. एक का आना दूसरे की अकरेंस को रूल आउट करता है. सो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? Two events are said to be independent if the probability of occurrence of one does not affect the probability of occurrence of the other. दो इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं अगर एक के आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता. जैसे अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. Suppose the events of getting head on the first coin and getting tail on the second coin in a simultaneous throw of two coins are independent. इसका मतलब क्या है?
अगर मेरे पास दो कॉइन्स हैं, मैंने उन दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, एक कॉइन में अगर हेड आया और दूसरे कॉइन में अगर टेल आया तो ये इंडिपेंडेंट है, एक का आना दूसरे के आने या आने को अफेक्ट नहीं कर रहा। पहले में अगर हेड आ रहा है तो वो आना दूसरे के टेल का आने को इफेक्ट नहीं कर रहा। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक के आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। अगेन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट थ्रो एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द सेकेंड थ्रो इन टू सक्सेसिव थ्रोज ऑफ अ कॉइन और इंडिपेंडेंट। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम सिर्फ एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो अगर पहली बार हेड आया, फिर हमने दोबारा टॉस किया तो दूसरी बार टेल आ गया, तो अब पहली बार हेड आना और दूसरी बार टेल आना, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा टेल का आना जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, हेड आने की और टेल आने की, कोई भी एक दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा। अभी भी अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो अब ये और ज्यादा क्लियर होगा। सपोज मेरे पास वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है, उसमें से मैं एक इवेंट प्ले कर रही हूँ ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन इन सक्सेसिव ड्रॉज विदाउट रिप्लेसमेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। कैसे? देखो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है। अब इसमें देखो वी आर ड्रॉइंग किंग, पहले हम किंग को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर क्वीन को कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वीन को किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। ठीक है। 52 कार्ड्स में से हमने एक किंग को ड्रॉ किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने रिप्लेस नहीं किया, मतलब हमने जो एक किंग बाहर निकाला था उसको वापस नहीं डाला। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 51। अब 51 कार्ड्स में से हमने एक क्वीन को निकाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/51। इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो गई ना, 4/51 हो गई रादर देन 4/52। इसका मतलब किंग का निकलना क्वीन के निकलने को अफेक्ट कर रहा है। इफ वी आर ड्रॉइंग देम विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है। इफ द कार्ड्स आर रिप्लेस्ड and then drawn, then the event becomes independent. अब जैसे हमने किंग निकाला, 4/52 प्रोबेबिलिटी आ गई, अब इस एक किंग को हमने वापस रख दिया, तो अब क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब टोटल कार्ड्स 52 हो गए, हमने किंग को वापस रख दिया, अब क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। इसका मतलब अब क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही किंग को निकालने की वजह से। तो नाउ द इवेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अगर एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है तो वो डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। Now next, what is sample space? All the possible outcomes of an experiment called a sample space. हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल के, वो सब मिलाकर बनता है सैंपल स्पेस। जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, हेड्स और टेल। तो हेड और टेल जो है they become a sample space. जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इफ वी थ्रो अ डाई, उस केस में जो सैंपल स्पेस है इट कंसिस्ट ऑफ 6
इवेंट्स, ठीक है, उस केस में हमारे पास हो जाते हैं 6 इवेंट्स, इधर 1 2 3 4 5 और 6, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। नेक्स्ट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस से जो है इससे भी तुम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो ना। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स which can be made out of a given number of things by taking some of them or all at a time, these are called permutations. इसको ध्यान से समझना है, permutations और combinations में क्या डिफरेंस होता है। परम्यूटेशंस में हम वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन में हम वर्ड यूज करते हैं सिलेक्शंस और ग्रुप्स। परम्यूटेशंस में हमारे पास सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जिसमें से हमने r नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं उनको निकाला और उनको अरेंज किया, तो वो हमारे बनते हैं परम्यूटेशंस विच आर डिनोटेड बाय NPR. That means out of n things we are taking r at a time and we are arranging these r things, तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। एंड बाय डेफिनेशन उसको हम लिखते हैं NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, आगे जब मैं इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स हैं, उनमें से हमने r थिंग्स को निकाला या सबको निकाला, टोटल n को हमने डिफरेंट सेलेक्शंस और ग्रुप्स बनाए, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। अभी तुम लोग को क्लियर नहीं होगा, जब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी वहां क्लियर होगा। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, परम्यूटेशंस में वी आर यूजिंग द टर्म द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, combinations में we are using the terms the different selections or groups that can be formed out of a given number of things by taking some or all of them at a time. Combination को by definition we write NCR which is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. n factorial upon n minus r factorial जो है this is nothing but the permutation, तो इसको हम लिख सकते हैं NPR upon r factorial, ठीक है। 0 फैक्टोरियल सब 1 होता है, ये सबको पता है, तो NPN जो है दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, NCN जो है दिस इज इक्वल टू 1, ये सबको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला, इस रिलेशन को कर लेना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। NPR is equal to NCR into R factorial, सिंपल है, सिर्फ डेफिनेशंस यूज करी है। NPR is n factorial upon n minus R factorial, NCR is n factorial upon R factorial into n minus R factorial, so we end up with the result NPR is equal to NCR into R factorial given by equation 1.3, ठीक है। अब यहाँ पर इस टॉपिक में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, NPR क्या होता है बाय डेफिनेशन, NCR क्या होता है बाय डेफिनेशन, एंड दिस रिलेशन। परम्यूटेशंस में आई एम सेइंग वी आर अरेंजिंग R things out of a number of given things. In combinations what we are doing, instead of arranging we have different selections or groups. इसका मतलब क्या है, ठीक है, यह भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। ना ये जो R फैक्टोरियल है इसको हम बोलते हैं मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। क्यों कहते हैं, देखो, इन अ प्रॉब्लम where the order of placing the objects in an arrangement is important. Suppose मेरे पास 4 नंबर्स हैं A B C D, ठीक है, तो मेरे पास n कितना हो गया 4, मेरे पास 4 नंबर, चलो हम 3 ही लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो n मेरा हो गया 3। इसमें से आई एम टेकिंग R एट अ टाइम, लेट्स से R मेरा हो गया 2, n मेरा 3 है, R मेरा 2 है, मैंने इसमें से 2 अल्फाबेट्स निकाल लिए। सपोज मैंने A और B को निकाला, तो मैं उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, अगर परम्यूटेशंस की बात करें तो मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ एज AB और BA।
So we have total 2 arrangements. So in a problem where the order of placing the objects in an arrangement is important, we use permutations. जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो 2 अल्फाबेट्स हैं इनको ए बी तरीके से प्लेस कर रहे हैं या बी ए तरीके से, वहां पर हम परम्यूटेशंस करते हैं. और जहां पर ऑर्डर इमटेरियल है वहां पर हम कॉम्बिनेशन, कि हमने बस ए और बी है इनको हमने एक साथ जो है प्लेस किया, तो हम चाहे ए बी लिखें या बी ए लिखें, बोथ आर सेम. जहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट्स, वहां पर हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं. जहां अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है वहां पर हम परम्यूटेशंस यूज करते हैं. तो अगर मेरे पास आउट ऑफ 3 अल्फाबेट्स 2 अल्फाबेट्स हैं, तो इन 2 अल्फाबेट्स को मैं किस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ? आई कैन अरेंज इट इन आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल वेज. 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 1, दैट इज 2. यही हमने देखा, इसको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी एंड बी ए. तो ये जो r फैक्टोरियल है, दिस 2 फैक्टोरियल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, कि हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, बस 2 नंबर्स हमको अरेंज करना है एनी ऑर्डर में, वहां कॉम्बिनेशन है. जहां ऑर्डर का हम यूज करते हैं वो परम्यूटेशन आ जाता है. ठीक है. और जो हमने जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने रिलेशन डिराइव किया था ना ऊपर, NPR is equal to NCR into R factorial. So suppose we wish to arrange n objects by taking R of them at a time. Total n objects में से हमने R बाहर निकाले, जैसे यहाँ 3 में से हमने 2 निकाले. Now the total number of ways जिसमें हम इन R objects को arrange कर सकते हैं, if placing of object is important, तो वो हमारा हो गया NPR. ठीक है. और ये R ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने का क्या तरीका होता है? R फैक्टोरियल वेज ऑलरेडी बताया है. अगर प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? NCR. इफ द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम RPR अरेंजमेंट्स जो है उनको मीनिंगलेस बोलेंगे. अगर ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स RPR और R फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन जो है दे आर मीनिंगलेस. दस द मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कौन से होंगे? कॉम्बिनेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R एट अ टाइम, NCR. n में से हमने R ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकाला और उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया, that is combination. So NCR is equal to NPR upon R factorial, जो हमने यहाँ पे already देखा है. So that means total number of arrangements, that is NPR, is equal to number of meaningful arrangements, that is NCR, into number of meaningless arrangements, that is R factorial. ठीक है. तो ये मैं क्यों कह रही थी इम्पोर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू द नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं किसी चीज की, इन दैट वी बेसिकली टॉक अबाउट द मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, दैट इज वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस इंस्टेड ऑफ परम्यूटेशंस. अब ये जो चीज मैंने समझाई थी ये और क्लियर होगी यहाँ से. Now what is the difference between permutation and combination? हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए A, B and C. The number of groups that can be formed with these letters taking all at a time. एक साथ अगर हमने तीनों को ले लिया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो यहाँ पे देखो मैंने कॉम्बिनेशंस में बताया था ना, हम वर्ड यूज करते हैं ग्रुप्स और सिलेक्शंस. परम्यूटेशंस में हम वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट. तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में अरेंजमेंट लिखा है या ग्रुप लिखा है. तो 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी जो है, इनका ग्रुप क्या बनेगा? जब हमारा मतलब प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर इज इमटेरियल, तो हमारे पास एक बनेगा ए बी सी. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2 इक्वल टू 6. देखो 6 ही बनेंगे. ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए. We can arrange these 3 objects A, B, C in 6 number of ways.
where the placing of object is important. Now अगर इन तीनों में से मैं दो को बाहर निकालूं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे हमारे, ए बी, बी सी एंड सी ए, 3 बनेंगे। पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, ए बी को आई कैन राइट एज ए बी एंड बी ए, बी सी को बी सी एंड सी बी, सी ए को सी ए एंड ए सी. So we have 6 number of arrangements if we are taking 2 letters at a time out of the 3 letters. तो इसका मतलब permutations में हमारा जो है प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशंस में हमारा प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वी नोट दैट इन ईच ग्रुप इन 3, हर एक ग्रुप ए बी जो है इट गिव्स राइज टू 2 अरेंजमेंट्स, बी सी गिव्स राइज टू 2 अरेंजमेंट्स, सी ए ऑल्सो गिव्स राइज टू 2 अरेंजमेंट्स. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट इन अरेंजमेंट्स the order of letters is considered, whereas it is ignored in case of a group. ग्रुप में हम इसे इग्नोर करते हैं, अरेंजमेंट्स में हम ऑर्डर को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल दिया है. इफ वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी. ओनली 4 combinations are possible. बट अगर हम कहें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो उस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाते हैं 24. कैसे, ये देखो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं किस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ इन 3 फैक्टोरियल वेज, दैट मीन्स 6 वेज में. तो 6 वेज इसके, 6 वेज इसके, 6 इसके, 6 इसके. ठीक है, तो 6 plus 6 plus 6 plus 6 is 24, or you can say 6 into 4 is 24. So the total number of arrangements or permutations are 24 and the total number of combinations are only 4. अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम में आ जाते हैं ये. If we have 3 different objects, then in how many ways 2 objects can be selected and arranged at a time? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है अरेंज, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशंस. 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, 3p2. ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उसमें से हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है. 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज भी करना है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन. सो दिस इज 4p2 which is equal to 4 factorial upon 4 minus 2 factorial, so it comes out to be 12. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है. इसमें अरेंज्ड वर्ड नहीं यूज किया, दैट मीन्स 4 में से हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को निकाला, दैट मीन्स 4c2. ठीक है, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के. आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस क्या होता है. प्रोबेबिलिटी में हम यूजुअली कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं. जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, 52. 52 में से मुझे एक किंग निकालना है. किंग हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 4. तो 4 किंग में से मैंने एक किंग निकाला, 4c1. दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 किंग आउट ऑफ अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, 4c1 अपॉन 52c1 which is equal to 4 upon 52. जो मैंने शुरू में भी एग्जांपल बताया था, किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52. ये कैसे आया, ये यहाँ से आया. ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में. तो अगर अब सबको कॉम्बिनेशंस क्लियर है तो उसकी हेल्प से नाउ वी कैन स्टडी प्रोबेबिलिटी. तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रोसीड करेंगे विद सम बेसिक आइडियाज अबाउट प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी की, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम,
and so on.